تحریری قشر احساس کشمیر. نمسکار، آداب ناظرین. آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں میں ارجمند علی خان پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج کے شمارے کا آغاز کرنے سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان رپورٹر کی سرخیوں پر. پنجاب کے لیے سندھی وسائل کی لوٹ کھسوٹ پر سراپا احتجاج سندھی لیڈران. گندگی کے ڈھیروں کی بھرمار سے وبائی بیماری میں مبتلا کراچی کے باشندگان. اور شہباز حکومت کی غلط پالیسیوں سے غم و غصے میں پاکستانی تاجران. سب سے پہلے بات پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت کی غاصبانہ پالیسیوں کو لے کر محکوم صوبوں میں بڑھتی بے اطمینانی کی. یہ سچائی شہباز شریف کی وفاقی حکومت کی جانب سے دریائے سندھ سے 6 نہریں پنجاب لے جانے کے لیے کی گئیں آئینی ترامیم سے سامنے آئی. لیکن سندھی قوم نے پنجابی جاگیرداروں اور فوجی عہدیداروں کی بنجر زمینوں کے لیے اپنے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف انقلابی تیور اختیار کر لیے ہیں. ہاتھوں میں بینرز اور زبان پر پاکستانی حکومت کے تانا شاہی فیصلے کے خلاف نعرے اور دلوں میں ریاستی ظلم و جبر کو لے کر غم و غصے کا طوفان. سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی سمیت سندھ صوبے کے ہر خاص و عام علاقے میں اب روز کا معمول بن چکے ہیں. اس کی وجہ ہے پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ صوبے کے قدرتی وسائل کے جبرن استحصال کے لیے تیز ہوئی سازشیں. انہی سازشوں کے تحت وفاقی حکومت نے اب پنجاب صوبے کی زمینوں کی آبیاری کے لیے دریائے سندھ سے 6 کینال یعنی نہریں نکالنے کا فیصلہ لیا ہے. لیکن سندھی قوم نے وفاقی حکومت کے اس غاصبانہ فیصلے کے خلاف انقلابی تیور اختیار کر لیے ہیں. چوک سے پریس کلب تک پورا من عظیم الشان بڑی ریلی نکال رہی ہے اور یہ پہلی سندھیانی تحریک نکال رہی ہے. سندھ کی عورتیں بہنیں بیٹیاں نکال رہی ہیں. اگر ہمارا دریا ہمیں واپس نہ کیا گیا سندھ پوری سندھ خراب احتجاج ہوگی. دریا ہماری مرنے جینے کا معاملہ ہے. ہم سندھیوں کے لیے نہیں پورے سندھ کے لیے دریا کسی صورت میں نہیں دیں گے ہم. اور ہم آپ کے 6 کینال نہیں برداشت کریں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ 6 کینال والی بات آپ رد کرو, ہماری زمینیں نہ لو. جو سندھ میں ہو رہا ہے, جو سندھ کے پانی دریاؤں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو سندھ دریا کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ سندھ کی زمین کو, سندھ کی دھرتی کو بنجر کر دے گا. تو اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ پانی اور خاص طور سے آپ سوچیں کہ عورتوں کی زندگیوں پہ کتنا اثر ہوگا, بچوں کی زندگیوں پہ کتنا اثر ہوگا. تو ہم اپنی فلم میں عورتوں پہ جو تشدد ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں. سندھی یعنی تحریک, سندھ یونائٹڈ پارٹی اور عوامی تحریک سندھ سمیت کئی سندھی قوم پرستوں کے مشترکہ بینر تلے کراچی میں ریگل چوک سے لے کر پریس کلب تک احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں. اس کے بعد کراچی پریس کلب پر احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا. ان احتجاجی ریلیوں اور دھرنے میں سندھی کاشتکاروں کے خاندان ہی نہیں بلکہ سندھی قوم پرست جماعتوں کے علاوہ انسانی حقوق اداروں کے کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا. ان احتجاجی ریلیوں کی رہنمائی کرنے والے سندھی لیڈران نے بتایا کہ پاکستان کا پنجاب صوبہ خصوصاً جنوبی پنجاب کا چوہلستان علاقہ گزشتہ کئی برسوں سے خشک سالی کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہے.
नतीजतन चोहलिस्तान में पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरान की ज़रई जमीनों पर काश्तकारी नहीं हो पा रही है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की मरहूने मिन्नत से वफाक और पंजाब सूबे में हुकूमत कर रही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA के कवानीन में आनन फानन आईनी तरामीम करके दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरों की तामीर की करारदाद मंजूर कर ली है। लेकिन सिंधी कौम इस करारदाद को सिंध दुश्मन बताते हुए पुरजोर मुखालफत कर रही है। हमारे सिंधु दरिया पर एक डाका डाला जा रहा है। आपको पता है कि सिंध की ज़मीनें पहले ही बंजर होती जा रही है, लेकिन ये इरसा एक्ट में तरमीम करके सिंधु दरिया पर गैर कानूनी कैनाल बना रहे हैं और गैर कानूनी जो कैनाल बनेंगे उसकी वजह से और भी सिंध में तबाही मचेगी। और अफसोस इस बात का है कि वो कैनाल बनवाने वाले और उस एक्ट में तरमीम करवाने वाले हमारे जरदारी साहब हैं, जो सिंध से उनका ताल्लुक है, तो वो सिंध का दुश्मन बन गया है और सिंध अवाम का दुश्मन बन गया है। वो सिंधी अवाम को तबाह करना चाहता है। ये पूरी कौम आज उठ खड़ी हुई है जरदारी के इस फैसले के खिलाफ और इंशाअल्लाह अज़ीज सिंध के इंच इंच की हिफाजत करेंगे, पानी की हिफाजत करेंगे, दरिया की हिफाजत करेंगे। इस मौके पर सिंधी तुलबा तालिबात पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की मुसलसल बढ़ती रियासती लूट खसूट के खिलाफ कराची में लोक फनकारी व अदाकारी के जरिए अपना दर्दो कर्ब बयां करने की कोशिशें करते रहे, क्योंकि सिंधी कौम और काश्तकारों का कहना है कि दरिया ए सिंध उनकी सकाफती तहजीबो तमद्दुन की पहचान अलामत ही नहीं, बल्कि दरिया ए सिंध के पानी से काश्तकारी पर उनका पुश्त दर पुश्त वजूद मुनहसिर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत जुनूबी पंजाब चोहलिस्तान की 60 लाख एकड़ जमीन को आबाद करने के लिए सिंधी जमीनों को बंजर बनाने की साजिशें कर रही है, जबकि सन 1859 से दरिया ए सिंध के पानी पर सिंधी कौम का पहला हक रहा है। ये ऐसा फैसला किया गया है जो आरिफ अलवी ने एस्टेब्लिशमेंट को मुंह पे दे मारा और रिटर्न कर दिया, लेकिन ये दलाल जरदारी ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ये अपने इक़्तिदार के लिए और इत्तेसाब से बचने के लिए ये पानी लिख के दिया है, लेकिन सिंध के अवाम ये कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हम बेदारी मार्च चला रहे हैं। आज एहतजाजी मार्च है। एहतजाजी मार्च ये है कि ये हमें देख लें, ये हमारा दरिया है, अगर ऊपर से बंद करते हैं तो नफरतें बढ़ेंगी सूबों में और फिर लोग कहेंगे कि भाई ऊपर से तुम नीचे ना आओ, हमारा पानी तुमने रोका हुआ है, तो नस्लों की नफरत क्यों डाल के जा रहे हैं। अगर पानी रुका और सिंध बंजर हुआ तो मेरा ख्याल है ये फेडरेशन मुश्किल चल सके। पाकिस्तानी हुकूमत के दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध सूबे की राजधानी कराची ही नहीं, बल्कि सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस सच्चाई का सबूत है सिंध सूबे के शहर हैदराबाद से लरकाना तक किया गया लॉन्ग मार्च। इस तवील लॉन्ग मार्च में शामिल सिंधी काश्तकारों और सिंधी कौम परस्त लीडरों ने कहा कि सिंधी जमीनों और दरियाए सिंध समेत तमाम कुदरती वसाइल पर उनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल टिका हुआ है, इसलिए वो पंजाब सूबे के लिए अपने वसाइल पर नाजायज कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची शहर 2 करोड़ लोग उधर रहते हैं, उनका पानी 50-70% बंद होगा, ये हमें कबूल नहीं है। अगर आप आइन का एहतराम, 91 अकॉर्ड का एहतराम नहीं करते, आप तरीक़ाए पानी की सिस्टम को CCI के बजाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और इंटीरियर मिनिस्टर और जनरल बैठ के फैसला करेंगे। अगर हमारे बीच में आइन नहीं है तो फिर कोई रियासत नहीं है, फिर कोई सूबा किसी आइन का पाबंद नहीं रहेगा। ये एहतजाजी मनाजिर हैं सिंध सूबे के सकरंड कस्बे से जामशोरो शहर तक निकाली गई एहतजाजी रैली के।
काबिले गौर बात ये रही कि इस एहतजाजी रैली की क़यादत SUP यानी सिंध यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन साईं सैयद जैन शाह ने की। सिंधी रहनुमा साईं सैयद जैन शाह ने कहा कि दरियाए सिंध के पानी पर पंजाबी डाका डाला गया तो अब सिंधी कौम खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी ओहदेदार चाइनीज मंसूबे सीपेक की आड़ में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की तरह सिंधी काश्तकारों की ज़रई जमीनों पर तो पहले ही कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अब पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरियाए सिंध के पानी पर डाका डाला गया तो खून की नहरें बह जाएंगी। पाकिस्तान में सिंध सूबे के महकूम अवाम अपने कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल को लेकर गम गुस्से में हैं। दूसरी तरफ सिंध सूबे की राजधानी कराची के बाशिंदे साफ सफाई और तिब्बी सहूलियात की हुकूमती अनदेखी की वजह से बेहद परेशान हैं। पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदों का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत उनके सबसे बड़े तिजारती शहर समेत पूरे सिंध सूबे से हर साल सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल करती है। ताहम सिंध सूबे की राजधानी कराची में जरूरी बुनियादी सहूलियात की मुसलसल अनदेखी हो रही है। ये कचरे की वजह से रिजवात हैं और ये कचरा जो की वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और इसमें बहुत सारे जो है काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसी चीज़ का शिकार हो चुके हैं, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है डेंगू और ये चिकनगुनिया। और हम कहते हैं सर ये साफ़ सुथराई हो जाए, और हम यही कुछ चाहते हैं। सफाई की जाए, सफाई सुथराई हो, इसी वजह से कि ये गंद है, ये पड़ा हुआ है, देखें खुद ही आपने, तो इसी वजह से इनका सफाई किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि ये ना फैले। अच्छा, मेरे को ये बताइएगा, ये इतनी खतरनाक बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं, इसकी क्या वजह? इसकी यही वजह है कि ये जो कचरा पड़ा हुआ है, ये जो इनकी वो सहूलियत है कि इनको गवर्नमेंट वालों को दिखना चाहिए कि आके ये उठाएं। जो सब स्प्रे होती थी वो भी नहीं कर रहे, पहले तो होती है ना, अभी हुकूमत भी हमारा साथ नहीं दे रही, और क्या करें। ये ख्यालात हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के बाशिंदों के। उनका कहना है कि कभी मिनी पाकिस्तान और शहर क़ैद के नाम से मकबूल था उनका शहर कराची, क्योंकि कराची शहर में पाकिस्तान के कोने कोने और हर नस्ल व मजहब से ताल्लुक रखने वाले ही नहीं, बल्कि बैरूनी मुल्कों से लौटे खानदान भी बाज आबादी को अवलीन तरजीह देते थे। लिहाजा आबादी और तिजारत के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा कराची शहर कभी रोशनियों के शहर के तौर पर अपनी खुसूसी पहचान रखता था, मगर अब उसी कराची शहर को कूड़े कचरे और गंदगी की भरमार के चलते कचराची कहा जाने लगा है। 7 जिलों पर मुश्तमिल कराची में अमूमन हर सड़क पर कूड़े कचरे और गंदगी के ढेरों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। ये सारी कचरे की वजह से हो रहे हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई है सारी, देखो सारे इसमें रहते हैं गरीब लोग, बड़े लोग तो ऐसे ही चला के सो रहे हैं, और गरीब लोग कहाँ जाएं। ये सारा कचरे की वजह से, पहले सफाई करते थे, अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद सफाई करने आते हैं, फ़ायदा। और डॉक्टरों की फीस इतनी बढ़ा दी कि 2 गोलियां देते और बोलते 1000 रुपये दे दो। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। आलूदगी भी है, गंदगी भी है, पानी जो है वो भी मुनासिब नहीं है, काबिल इस्तेमाल नहीं है, आप उसे पी नहीं सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसकी वजूहात हैं जो बीमारियां फैल रही हैं। उसकी असल वजूहात अदम तवज्जो है हुकूमत की। हुकूमत को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है, लेकिन चूंकि हुकूमत किसी भी चीज़ पर सिर्फ सियासत पे तो तवज्जो है दिन और रात, लेकिन आवाम के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए, चाहे दही इलाके हों या शहरी इलाके हों, किसी भी तरह पर कोई ऐसी तवज्जो नहीं है। यही वजह है कि गंदगी और गलाजत की ढेर के सबब बीमारियां दिन ब दिन नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। कराची के बाशिंदों का कहना है कि पूरे शहर में बढ़ती गंदगी और कूड़े कचरे की वजह से उनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है।
जरा गौर से देखिए कूड़े कचरे के नजदीक गुजर बसर करने पर मजबूर गरीब खानदानों की इन झुग्गी झोपड़ियों को, जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वबाई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि सिंध के बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद जिस तेज रफ्तार से बढ़ रही है, उन मरीजों को इलाज मुआवजे की माकूल सहूलियात तक मैसर नहीं हो पा रही है। मुतासिरा खानदानों ने कहा कि सिंध में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुसलसल PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, ताहम सिंध सूबे के बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों को तिब्बी जैसी जरूरी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं है। कचरा आदे हैं भाई साफ करो, हमारे झुग्गी नाला है, कोई साफ नहीं करता। आते हैं पर आपदे पैसे भी आओ, आपदे महीने के महीने गरीब लोग की बड़े तंग है। ये देखो कचरा देखो साफ है, जो साफ गवा दूं हथड़ कुटे दे नाल गरीब लोग धक्का लेंदे किरे वजह गरीब लोग छोटे छोटे बाल कमाते आमदन ताज़े डॉक्टर को लेने खड़ू, डॉक्टर ने वेनू बड़ा पैसे एक टीका लेंदे 1000-2000 वो आदन बेसारी फीस है। गरीब बंदा बस बड़ा तंग है। हुकूमत सिंध वजारत सेहत जो है वो वजारत सेहत हो, वजारत बल्दियात हो, वजारत कोई सी भी वजारत हो, जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं कि शहर में सेहत व सफाई होनी चाहिए, जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं कि शहर में वबाई अमराज के फैलाव की रोकथाम के लिए इक़दामात होने चाहिए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया है कि हुकूमत की कोई भी तवज्जो नहीं है। और ये अदम तवज्जो लोगों को सिर्फ बीमार नहीं कर रही, लोग वबाई अमराज की लपेट में मुब्तला नहीं हुए हैं, लोग मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान में हुकूमती बदउनवानियों के दस्तूर और बद इंतजामी की वजह से चारों सूबों के ही अवाम में सेहत व तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात की अनदेखी को लेकर शदीद गम गुस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा अबतर सूरत हाल पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले पोर्ट सिटी कराची का है। बात चाहे बिजली पानी की किल्लत की हो, लाकानूनियत के आलम में जराइम की बढ़ती वारदातें हों, या फिर खस्ता हाल सड़कें और कूड़े कचरे की भरमार में कराची सरे फेहरिस्त है। कराची की इस बदहाली के लिए मकामी बाशिंदे सूबाई हुकूमत के बेहिस रवैये और सरकारी महकमों में बदउनवानियों के बढ़ते बोलबाले को कसूरवार ठहराते हैं। सेहत पर हुकूमत सिंध तवज्जो दे। अस्पतालों में गंदगी का आलम यह है कि लोग नाक पर रुमाल रखकर गुजरते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, मुतालिका इदारों की जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ ड्यूटियां करना, तनख्वाहें लेना और घर चले जाना ये नहीं है। सियासत करना और जलसों से खिताब कर लेना ये नहीं है। जज्बाती तकरीरें कर लेना ये जिम्मेदारियां नहीं हैं। एहसासात पैदा करें उन लोगों के लिए जो आपको वोट देते हैं, आप पर एतमाद करते हैं और आपको बरसे इक़्तिदार लेकर आते हैं। कराची के बाशिंदों का कहना है कि पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना का शहर कभी ऐसा खूबसूरत शहर था जिसमें पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों तक के लोग रोजगार और सैर सपाटे के लिए आने को खुसूसी तरजीह देते थे। मगर बदले माहौल हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। एक तरफ कराची में लाकानूनियत के आलम में मुख्तलिफ माफिया गिरोहों की जानिब से अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग्स की वजह से बेशतर ताजिर वो सरमायाकार दीगर मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं। दूसरी तरफ कराची में बढ़ती बेरोजगारी और कूड़े कचरे के ढेरों की भरमार से माहौलियाती आलूदगी के खतरे के सबब दिहाड़ी मजदूर तक अपने आबाई इलाकों को लौटने पर मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी कारोबारियों में शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से की लहर। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले बाजौड़ में जमात इस्लामी के सीनियर लीडर मोहम्मद हामिद सूफी की टारगेट किलिंग से खौफ व दहशत मजीद बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हामिद सूफी पर बाजौड़ जिले की खार तहसील में दहशतगर्दों की जानिब से उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जब वो मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों की फायरिंग में बुरी तरह जख्मी मोहम्मद हामिद सूफी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ताहम उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मोहम्मद हामिद सूफी की टारगेट किलिंग के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करने के लिए मुतासरा खानदान और जमात इस्लामी के कारकुनों ने बाजौड़ में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए और मकतूल मोहम्मद हामिद सूफी के टारगेट किलर्स की फिलफौर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में फिरका वाराना फसादात और तशद्दुद की आग भड़काने की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कबायली जिले कुर्रम के पारा चिनार इलाके में शिया मुसाफिरों की बसों को दहशतगर्दों ने रोककर टारगेट किलिंग का शिकार बनाया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि शिया मुसाफिरों की ये बसें पाकिस्तानी फौज के एहलकारों की हिफाजत में पारा चिनार से पेशावर जा रही थी। ताहम दहशतगर्द शिया मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाने में कामयाब हो गए। इस खौफनाक हमले में 4 दर्जन से ज्यादा शिया मुसाफिर जाँ बहक और तकरीबन 2 दर्जन जख्मी होने की गैर सरकारी खबरें आती रहीं। इस हमले के पीछे ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसकी हामी सुन्नी दहशतगर्द तंजीमों का हाथ होने के खदशात जाहिर किए गए। IMF का वफद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का दौरा करके वापस लौट गया, लेकिन जाते जाते पाकिस्तानी हुकूमत खुसूसन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को कर्जे की डील के हादाफ यानी टारगेट्स पूरा ना होने पर अगली किस्त रोकने की धमकी भी दे गया। पाकिस्तान के इनकम टैक्स महकमे FBR यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सालाना आम बजट में तयशुदा टैक्स के टारगेट्स मुकम्मल न होने की खबरों पर IMF के वफद ने इस्लामाबाद का हंगामी दौरा किया और पाकिस्तान की मुआशी टीम से कई रोज तक बाहिमी मुज़ाकरात करके 7 अरब डॉलर के कर्ज की डील के मुआहदे के तहत तयशुदा तमाम हादाफ हर सूरत में पूरे करने की सख्त हिदायत दी। इन बाहिमी मुज़ाकरात के दौरान IMF के वफद ने पाकिस्तान में टैक्स का दायरा बढ़ाने और खसारे में चल रहे पाकिस्तान के सरकारी इदारों को निजी हाथों में फरोख्त करने पर भी जोर दिया। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के कमर्शियल कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसियों को लेकर कारोबारी बिरादरी में बढ़ती बेइत्मीनानी का। इस सिलसिले में कराची की ताजिर तंजीम के लीडर मोहम्मद बिलाल के बेबाक इजहार ख्यालात पर पेश है ये रिपोर्ट। रोजमर्रा जिंदगी की रफ्तार हो या गाड़ी की, दोनों को चलाने के लिए बेहतर माली हालत की असद जरूरत होती है, लेकिन खस्ता हाल मईशत खुसूसन डॉलर की उड़ान पर काबू पाने और पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसीज को लेकर कारोबारी तबके में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ चुकी है। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी और उससे जुड़े कारोबारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी कारोबारियों का कहना है कि हुकूमती नाहली और गलत पॉलिसियों ने घरेलू सन्नतकारी और तिजारत पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिए हैं। इस वक्त कोई भी कारोबार अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री के पास अगर आप इस वक्त चले जाएं तो कोई भी इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो इस वक्त उसके पास ना इन्वेस्टमेंट है, ना सरमायाकारी के लिए पैसे हैं लोगों के पास, और ना
لوگوں کے پاس اس وقت اتنا وسیع وہ ہے کہ ریسورسز ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو چلا سکیں، کیونکہ یہ ملک کے اندر سے اس وقت جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ آرٹیفیشل سسٹم بنا ہوا ہے۔ سے اگر آپ یہ امپیکٹ دیکھیں کہ یہ اس وقت اس سے ہی لنک ہے، آپ کا ڈالر بھی ہوتا ہے، اور ڈالر آپ کا اوپر نیچے جو ہے اس وقت فلیکچویشن کر رہا ہے، کیونکہ ڈالر آپ کا فلیکچویشن اس لیے کر رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی یہ ایک اپنی پالیسی ہے۔ گورنمنٹ یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہم نے آ کے جو ہے اپنے دیکھیں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھو تو گورنمنٹ نے اگر آپ کو ایک طریقے سے اگر آپ کو ڈالر کو 19-20 کیا ہے تو اس نے آپ کا گیس کو بڑھا دیا ہے، آپ کی الیکٹرسٹی کو مہنگا کر دیا ہے، آپ کی جو ہے اس وقت جو گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت اوپر ہے، گیس کی اس وقت سب سے بڑی لوڈ شیڈنگ ہے۔ آپ انڈسٹریز کو تو گیس ان کے لیے تو نایاب ہو چکی ہے، اور اس وقت گھریلو صارفین کے لیے بھی اپنا گیس جو ہے وہ بالکل نایاب ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے کھڑی بھی ہے۔ ایک غریب آدمی جو تقریباً 20-25 ہزار روپے کمانے والا آدمی جو مہینے کا 20-25 ہزار کماتا تھا، اس کے گھر کا بل جو ہے وہ 15,000-16,000 روپے میں بل آ رہا ہے۔ مطلب یہ تو ایک شوق والی بات ہے کہ یار ایک پنکھا اور دو ٹیوب لائٹ والے کے گھر کا بل جو ہے 15-16 ہزار آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف اور صرف ہمارے جو معاہدے اس طریقے کے ہم نے معاہدے کیے ہیں، ان معاہدے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ہمارا جو ہے سسٹم ہے وہ ہم اس پہ جو ہے مجبور ہیں۔ ہمارے ملک کی جو معیشت جو ہے نا وہ اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ اس وقت جس لوگوں کو چانس مل رہا ہے نا وہ لوگ بول رہے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کے چلے جاؤں۔ آج کسی کو بھی تھوڑا سا بھی موقع مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک کو جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاؤں، کیونکہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کو میں کہنا کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت آپ کے پاس چلے جائے آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے سیکیور نہیں ہے، آپ اپنے بزنس میں سیکیور نہیں، ہر جگہ آپ کو کرپشن ہے، اور ہر جگہ اس کرپشن کا جو کی وجہ سے اس پر جو ہے ملک کو جو ہے پورا ڈیفالٹ ہوا ہے۔ اگر ایک عام آدمی ایک کاروباری آدمی سے اگر آپ پوچھو کہ وہ کہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کو پورا 100% ٹیکس دوں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میں بھی 100% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں، یا کوئی بھی بندہ وہ کہتا ہے میں 100% ٹیکس دوں، مگر 100% ٹیکس کے اوپر اس کو کیا بینیفٹ ملتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔